Now I think I am visible and audible both, because now I can see the windows also. So today's live discussion will be one of the renowned advocates, and he is a matrimonial counselor and a very active lawyer from Maharashtra. I'm just trying to connect him to our live session. The request has already been sent. Let us just see whether he is there or not. Hi, Anvita. Trying to connect our today's guest. Please confirm if I'm able to, whether I'm audible or not, because so I'm sending you an invite again, Manojji. Please accept the invite. Are you able to see the invite? Please accept the invite, Manojji, because it's showing adding from a long time. Oh, thank you for that confirmation, Anvita. And I can see new people joining in. So this particular episode of Aapki Baat is for a very interesting topic, for which Mr. Manoj is joining us, as I introduced him as a lawyer in the matrimonial domain. Manojji, are you able to accept that invite, or you can do, I'll cancel the invite from here and you can add me from there. This can be done. This has not been responded from your end, Manojji. So if you're here, please connect. So in the meanwhile, while our guest is connecting with us, okay, he is here. Yeah, hi. Manojji, you're not visible. Can you please adjust your camera? Just a minute. You were connected, but now you're not showing connected. Can you please send me the invite? I will accept it in case your network is... Maybe this is the 5G problem. Now that the people are not able to connect online. I don't know. I'm just guessing. So in the meanwhile, while he connects again, मनोज जी, you send me the invite. आपको नीचे जो options दिख रहे होंगे या मेरे icon पे click कीजिए and send me that invite so that I can bring you on camera. Hi, Santosh. Yes, now you are there, but yes, now you are Yeah. I'm here. I think it was
connectivity issue at your end. कैमरा सीधा करना पड़ेगा आपको. यस मैम. हाँ अर्पिता मैम, कैसे हो? परफेक्ट. आवाज थोड़ी कम आ रही है. अभी आ रही है आवाज? नहीं, बहुत धीरे आ रही है आपको. या तो फिर आपको हेडफोन्स हटाने पड़ेंगे. Will that be possible? जस्ट वेट. अच्छा, अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी आ रही है. बेटर देन बिफोर. Yes. गुड इवनिंग मनोज जी. गुड तो इवनिंग. वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है फेसबुक में. आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क. या सुबह से सर्विस का प्रॉब्लम है. अभी भी आपकी आवाज ना बहुत लो वॉल्यूम आ रही है. कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम और माइक वॉल्यूम? माइक वॉल्यूम भी ठीक है मैडम. अभी आ रही है मेरी आवाज? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर से आ रही है. हेलो. Should I try Hello. to connect you again? Disconnect करके? Can Please, somebody please. confirm कि मनोज जी की आवाज आ रही है कि नहीं? मुझे आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है मैम. मेरी तो मैंने तो एडिशनल माइक्रोफोन्स लगा रखे. ओके. बिकॉज मेरी वैसे भी वॉइस बहुत लाउड है. एंड कुछ नेटवर्क इशू है शायद. हो सकता है, quite possible. Santosh ji, if you can just confirm if you're able to hear Manoj ji out. Okay, Anvita has Hello. confirmed. Okay, great. Thank you, Harshita ji. Thank you, Anvita. So, Manoj ji, let's continue. आज हमारे साथ मनोज जी हैं. He is a lawyer from Maharashtra and he is basically into law consultancy. Of course, being an advocate, law consultancy में है, लेकिन he is much concerned about the मैट्रिमोनियल इश्यूज जो कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप्स में और मेंटल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं. तो मेरी जो बात हो रही थी सर से, इट वाज जस्ट अबाउट कि आज हम इसको एक एपिसोड में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज द लीगल टॉपिक्स आर टू वाइड. तो हम कोशिश कर रहे हैं आज हम जिस टॉपिक को कवर करें वो कंप्लीट कर सकें. So thank you for being with us, dear audience. And अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप simultaneously पूछ सकते हैं. Thank you so much. Yes, Manoj, you can please introduce yourself formally and continue from here. Yeah, here it's Advocate Manoj. I'm practicing in Nashik District Court since 2004. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास मैट्रिमोनियल ही डिस्प्यूट है. दरअसल आई एम ऑल्सो डीलिंग विद disputes regarding to deficiency of the service in the consumer commission, in the district commission as well as in a state commission. और रही बात मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की, तो जो मेरी आपसे सुबह कुछ जो डिस्कशन हुआ था, तो मेरा यही कहने का मतलब था कि काफी जो सेपरेशन पिटिशन या रेस्टिट्यूशन पिटिशन जो भी फाइल हो रहे हैं, तो एज पर हिंदू law there are the number of the grounds, we can say on the number of the grounds we can seek divorce. लेकिन पिछले 5 या 6 साल से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि पहले जो ग्राउंड्स आते थे, क्रुएल्टी, दैट इज मेंटल हेरासमेंट, फिजिकल हेरासमेंट, ये ग्राउंड्स का रेशियो अभी काफी कम हो गया है. अभी मोस्टली जो ग्राउंड है वो एक ही आ रहा है, एडल्ट्री का ग्राउंड. तो कंसर्न इस पर मैंने थोड़ा पढ़ा है और जितना मैंने रिसर्च किया है, मैंने काफी बार देखा है कि आजकल ये जो सोशल साइट्स है, फिर वो हम इंस्टाग्राम ले ले, व्हाट्सएप ले ले या फेसबुक ले ले, नाउ दिस एप्लीकेशंस आर वर्किंग एज अ स्लो पॉइजन राइट फ्रॉम दिस वेस्टर्न कंट्रीज. ये जो एप्लीकेशंस का जितना फायदा हो रहा है आज की लाइफ में, हमारा बिजनेसेस बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है. फायदे नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इन चीजों का जिस तरीके से अभी यूज हो रहा है, यूज कम हो रहा है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है. और कहीं तो भी एक ये जो ट्रस्ट इशू जो क्रिएट हो रहा है फैमिलीज में, कि मैंने अभी कोई पोस्ट की, उस पर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, उस कमेंट्स पे मैंने फिर से रिप्लाई किया, फिर उस रिप्लाई पे क्या कमेंट्स आए. तो दिन भर क्या हो रहा है कि हम, सॉरी टू से मैं थोड़े वर्ड्स ऐसे यूज करूंगा, इवन हम बाथरूम में भी जा रहे हैं सुबह तो साथ में मोबाइल लेकर जा रहे हैं. वेरी ट्रू.
वेरी ट्रू, ये ये मैं नोटिस कर रही हूँ। ये बाथरूम में मोबाइल लेकर जाना और फिर वो जो एक सस्पिशियस व्यू हो जाता है कि भाई क्या बात है, सुबह ब्रश करने जा रहे हो तो भी मोबाइल, बाथरूम में जा रहे हो तो भी मोबाइल। तो इन चीजों में अगर हमारे मन में कुछ नहीं भी है तो ये शक बढ़ते जा रहे हैं, और ये शक एक बार अगर घर कर देगा तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो ट्रू। इन चीजों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज कहीं तो भी, ये जो हमारा जॉइंट फैमिलीज का जो है, अभी बड़े शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज है, मैं समझ रहा हूँ कि बिजनेस पर्पस के लिए या काम के सिलसिले में लोग अलग रह रहे हैं, लेकिन आज भी जॉइंट फैमिलीज बड़े पैमाने पे हमारे कंट्री में है। तो कहीं तो भी ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है कि एक देश की पीढ़ी कैसे हम खराब करें। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। बीच में मैंने ये पढ़ा था कि स्टीव जॉब्स के बच्चों को ग्रेजुएशन होने तक उन्होंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया था, या फिर वो, कहने का मतलब, सोशल साइट से काफी दूर थे। तो उन लोगों को समझ में आ रहा है कि इस चीज को कब इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है। लेकिन आज हमारे घर में ये है कि 7th स्टैंडर्ड में बच्चा जा रहा है, उसके हाथ में हम स्मार्टफोन थमा दे रहे हैं। तो इन चीजों के वजह से, कहने का मतलब है कि जितने भी मैं पिटिशंस अभी डील कर रहा हूं तो उसमें मोस्टली यही है कि रात को 2 बजे तक ऑनलाइन दिख रहा है, रात को 1 बजे तक ऑनलाइन दिख रही है। मैं अगर आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे मेरी वाइफ 12 बजे तक ऑनलाइन है, मेरे हस्बैंड 1 बजे तक ऑनलाइन है। जरूरी नहीं है वो ऑनलाइन है तो कुछ तो गलत ही कर रहे होंगे, लेकिन एक शक तो आपके घर में आ जाता है, शक, मन में हो जाता है। एग्जैक्टली, मतलब वैसे ही मैट्रिमोनियल इश्यूज इसीलिए होते हैं कि शक हो सबसे रहा है। ज्यादा होता है, तो ये एप्लीकेशन और और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और जब फॉलोअप लिया जाता है तो आजकल, पहले जैसा एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल क्या है, स्क्रीनशॉट्स मोस्टली जजेस के बेंच पे आ जाते हैं। देखो कितनी वल्गर चैट्स हो रही है। जजेस देखता है कि जब आपके दो दो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जा रहा है और ये आप क्या कर रहे हो, तो कहीं तो भी ज्यादा करके, मैं कोई रिलीजियस इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने एक ऑब्जर्व किया है, मुस्लिम कम्युनिटीज के पिटिशंस ना के बराबर आते हैं कोर्ट्स में। हिंदू कम्युनिटीज के, या फिर जो भी अंडर आते हैं, जैन्स, सिंधीज, मारवाड़ीज, ब्राह्मण्स, मराठास, हर कम्युनिटी के लोग हैं। हिंदू कम्युनिटी के पिटिशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा। कि दूसरी कम्युनिटी पे मैं कोई कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन ये लोगों का जो इस्तेमाल है डिवाइसेस का, या फिर सोशल साइट्स पे इन लोगों का ये है, तो मैं ये भी इनको सपोर्ट नहीं करूंगा कि ये लोग जो पिछड़ेपन में जी रहे हैं ये सही है। लेकिन इतनी आजादी दे दी गई है हमको, तो 7th स्टैंडर्ड में हमारी बच्ची स्कूल जा रही है और हम उसके हाथ में स्मार्टफोन थमा दे रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है। हस्बैंड वाइफ अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। तो कहीं तो भी ये पीढ़ी की पीढ़ी खराब हो रही है, और मोस्टली रीजंस अभी यही आ रहे हैं कोर्ट में कि शी इज हैविंग समवेयर और ही इज हैविंग समवेयर। तो ये सब चीजें रुकनी चाहिए। अगर आपके दर्शक देख रहे हैं तो मैंने अगर किसी के बारे में कुछ कहा नहीं, या किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं, नहीं कहा, नहीं, मेरा देखिए किसी का क्या मन है, दुखाने का हम भी जरूरत चीज नहीं, जो है लेकिन हम, ये रियलिटी है, मैंने देखा है कि ये काफी चीजें बढ़ रही है, और फैमिली कोर्ट्स में पिटिशंस का प्रमाण इतना बढ़ चुका है अभी कि अगर कोर्ट सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक भी बैठे ना, पहले आते थे हफ्ते में 3 या 4 डिग्री के लिए ऑर्डर्स आते थे, आज रोज 8 से 9 डिग्री के लिए ऑर्डर्स आ रहे हैं। ओ माय तो आप गॉड। अंदाजा लगाइए कि कितने डिवोर्स पिटिशंस रोज फाइल हो रहे हैं। तो ये सोचने जैसी बात है। अच्छा, अगर जैसे हम इसकी बात करें वकील साहब, जैसे अभी कुशाग्र हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं, इन्होंने लिखा कि अगर हस्बैंड वाइफ का फोन एक दूसरे के लिए अनलॉक्ड रहे तो ये इशू कम हो सकते हैं। हाँ, पॉजिटिवली अगर उनके बीच में इतना ट्रांसपेरेंसी है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अनलॉक होने पर भी, अगर अनलॉक है तो क्या इसका कुछ सोल्यूशन होगा कि ये जो शक वाला जो कीड़ा एक बार दिमाग में आ जाता है, तो क्या वहां पे कोई चीज वर्कआउट कर सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सब हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के मन सिर्फ अनलॉक कर दो, आपको मोबाइल लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके मन ही अनलॉक करने पड़ रहे हैं, आपको लॉक करने पड़ रहे हैं, अनलॉक करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो भी कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है ना। अगर आप पासवर्ड नहीं रखोगे, ऐसे भी रखोगे, आपको लगेगा चलो पासवर्ड नहीं, डर के मारे मैं पासवर्ड रख रहा हूं। अभी पर्सनली नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन अगर हम ये मोबाइल पासवर्ड रखे भी, तो पासवर्ड अगर हमारे पार्टनर को पता है तो आप पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मैं कहीं गलत हूं, तो मुझे
कहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा अगर जो पार्टनर है वो मेरे साथ इतना ट्रस्टफुली बिहेव कर रहा है या वो इतना मेरे पे ट्रस्ट दिखा रहा है, तो मैं ये चीजें कहाँ तक ले जाऊं। ये हर एक की अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि सिर्फ आप मोबाइल लॉक करें या अनलॉक करें, ये चीजें मैं नहीं समझता मायने रखती है। अगर मैं कहीं तो भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुका हूं और मैं उसे कह दूंगा कि आप मुझे ये टाइम पे मैसेज मत करना, मैं ऑफिस में जाऊंगा फिर मुझे मैसेज करना। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि आज की डेट में जो लिबर्टी है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो दे बोथ हैव अ लाइफ आउटसाइड देयर हाउस आल्सो। और डेफिनेटली। अगर हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ होम मेकर है, तो उस केस में भी, या बिजनेस भी कर रहा है हस्बैंड, तो 24/7 किसी का भी साथ रहना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर किसी को करना ही होगा तो वो उसको बहुत स्मार्टली मैनेज कर लेगा। तो वो अनलॉक होना या लॉक होना उतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू मिसयूज है। आपने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि जब कोविड काल में ये हस्बैंड वाइफ जब जॉब पे नहीं थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उस कार्यकाल में जितने डिवोर्स पिटिशंस फाइल हुए हैं इंडिया में, उतने पिछले 6 साल में फाइल नहीं हुए। और इस सर्वे में ये कहा गया था कि जितने भी डिवोर्स पिटिशन फाइल हुए उसमें से 60% जो डिवोर्स पिटिशन थे ये आईटी सेक्टर के लोगों के थे। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर के इंजीनियर्स लोगों है, के। यस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है मोस्टली, जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, इन लोगों का रेशियो बहुत ज्यादा था। ये उस सर्वे में दिखाया गया था। तो अगर किसी को चीट करना है तो वो किसी तरह भी चीट करेगा, फिर उसके लिए मोबाइल लॉक करना या अनलॉक करना, ये चीजें मैं नहीं समझता कोई मायने रखती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Yeah. पर ये जो आपने मुझे अभी डेटा बताया कि मैक्सिमम जो पिटिशन था वो उस टाइम पे आया था, उस ड्यूरेशन पे आया था, और मैक्सिमम जो सेक्टर विच अप्लाइड फॉर अ सेपरेशन पिटिशन और व्हाटएवर the circumstances where they were from the corporate backgrounds and the IT backgrounds. तो इसका कहीं हमारे पास देखने के लिए डेटा अवेलेबल होगा डेफिनेटली, वेबसाइट वगैरह पे रहेगा नहीं? ये मैंने पढ़ा था, लगभग 2023 की बात है। इफ यू विल गूगल डेफिनेटली यू विल गेट इट। और इसमें और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा कि ये पिटिशंस का रेशियो ये ज्यादा बढ़ने के लिए रीजन ये है कि दिन भर क्या हो रहा है कि हम बाहर रह रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बाहर चल रहा है थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन जब हम कोविड काल में 4 दीवारों के अंदर एक दूसरे के साथ लगभग काफी महीने बिता चुके थे, तो कहीं तो भी वो टेक्स्ट मैसेजेस आ जाना, कहीं तो भी वो मन मुटाव, वो फ्रस्ट्रेशन, वो पार्टनर्स आपका चेहरा आपका पढ़ लेता है। राइट, आप एंड वो एक फैक्ट चेक और रियलिटी चेक भी हो जाता है। यस डेफिनेटली, तो वहां आप कितनी चीजें छुपाओगे और किस हद तक छुपाओगे आप, ये चीजें छुपने वाली नहीं है। आप कितनी भी छुपाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं ये चीजें, अगर आपका पार्टनर आपका केयर कर रहा है तो वो चीजें पकड़ लेगा, वो आपके चेहरे के हाव भाव से ही समझ कि जाएगा कुछ कि कहीं तो गड़बड़ कुछ है। गड़बड़। वेरी ट्रू। डेफिनेटली यस। अच्छा, ये जो हम सोशल मीडिया साइट्स की अगर हम बात ना करें, फॉर सम रीजंस हम सोशल मीडिया को अलग कर दें अपनी लाइफ से, उसके अलावा भी जो इंटरेक्शंस होते हैं यूजुअली, अब जो अगर हम ये डेटा की बात करें कि आईटी सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो क्या बोथ द पार्टीज वो वर्किंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या एक वर्किंग था एक होम मेकर था, ऐसा कुछ भी एनालिसिस किया है क्या? इसमें एनालिसिस ऐसा था कि बोथ द पार्टीज वर वर्किंग। So both of them, they have the liberty to go out and do whatever they want. वो लेकिन डिपेंड करता है कि मैं बाहर जाने के बाद मैं कितना अपनी तरफ से ईमानदारी दिखा रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन दैट। Right. जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर बाहर है और दोनों ये सब चीजें कर रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो कहीं तो भी हमको, सॉरी, मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का इंसान हूँ शायद, अगर मेरे बात करने से ऐसा लगा भी होगा आप लोगों को, लेकिन कहीं तो भी जब हम बंधते हैं 7 फेरों के साथ, तो कहीं तो भी वहां जो संस्कृत भाषा के श्लोक है कि कहीं तो भी एक प्रॉमिस किया जाता है कि मैं जिंदगी भर केयर करूंगा, और 1 साल नहीं 7 साल केयर करूंगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीजें
काफी हद तक निभाई जाती है। देखिए उसका एक रीजन, मतलब मैं एज अ, आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉ बात कर रहे हैं, जी। मैं यहाँ पे एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। अभी 4 एक महीने 5 महीने पहले एक क्लाइंट आए थे हु बोथ वर डिवोर्स्ड एंड रीमैरिड। मतलब जो ओके। कपल था, हस्बैंड का भी पहले डिवोर्स हो चुका था, वाइफ का भी डिवोर्स हो चुका था और दोनों का रीमैरिज था। हस्बैंड जो था, अभी प्रेजेंट हस्बैंड जो है, वो कम पढ़ा लिखा है, 10th पास है या 12th पास है, लेकिन जो वाइफ है शी इज एन एमफिल। ग्रेट। तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होने के नाते, अब ये भी रहता है ना, फैमिली का एक प्रेशर रहता है कि नहीं शादी कर लो शादी कर लो। तो कहीं से पीयर प्रेशर, कहीं से शादी का प्रेशर, घर वालों से कि सेटल हो जाओ, तो दोनों ने शादी कर ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरे पास जो कंसल्टेंसी के लिए आ रहे थे, द वाइफ वॉज इन अ सिवियर डिप्रेशन, जबकि उसका अभी 7 मंथ्स ओल्ड बेबी भी है। तो अब तो 11 मंथ्स हो गया होगा, 4 मंथ्स पहले की बात है। तो दोनों में इसलिए डिस्प्यूट कि बात बात में जो सेकंड वाली वाइफ है उसको फर्स्ट वाली वाइफ से कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये, मतलब व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस केस पर्टिकुलरली, कि ये सिचुएशन ऐसी है कि दोनों का प्रीवियस शादी तो टूट चुका है, प्रेजेंट शादी को निभाना है, डिफरेंसेस भी है, सब है, लेकिन बावजूद उसके मेच्योरिटी नहीं है। उसने भी सोच समझ के सिलेक्ट किया होगा कि ये बंदा जो है मुझसे कम पढ़ा लिखा है, वेदर आई बी एबल टू मैनेज द लाइफ विद हिम और नॉट, वो उसको सोचना चाहिए था। या जो लड़का है उसको भी समझ के चलना चाहिए था कि लड़की मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, अगर मैं कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स की सारी चीजें अप्लाई करूंगा ये मानेगी कि नहीं। और एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए साथ में, कि अभी बेबी को लेके आना है, फैमिली वे बढ़ाना है, उसके बाद भी वही सारी चीजें रिपीट मोड पे हो रही है, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग चीज हो जाता है। एंड ये घरों के जो बच्चे होते हैं वो ब्रोकन फैमिली से ज्यादा सफर करते हैं। डेफिनेटली। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ कंसल्टेंट, कि इस किस्म के केसेस भी बढ़ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि ऐसे सिचुएशंस दूसरों की लाइफ में भी आते हो कि जिन लोग डिवोर्स हो गया, डिजायर्ड पार्टनर्स के साथ भी सेटल हो गए, लेकिन वहां भी दे आर नॉट हैप्पी। मैं कुछ कहूँ इस पे? तो ये जो पॉसिबिलिटी है, जहां से मैं बात कर रही हूँ कि डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज, डिवोर्स अपने आप में एक काफी लंबा प्रोसेस होता है, काफी हार्ट ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, काफी टाइम लगता है उससे भी इंसान को हील होने में। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं इट इज अबाउट द माइंडसेट ऑफ पीपल, डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, तो डिससेटिस्फैक्शन है, इसलिए बी इट एनी पार्टनर वो प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे ख्याल से एक जो कभी कभी हम बात करते हैं कुछ कंट्रीज में या कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि प्री वेडिंग काउंसलिंग्स भी होती हैं। प्री वेडिंग काउंसलिंग में एटलीस्ट लोगों को ये बताया जाता है, खासकर अरेंज मैरिज के केसेस में जरूर होना चाहिए, कि काउंसलर्स जो है उनका ये रोल रहे एक लड़के को और एक लड़की को ये बताने का कि भाई इट इज नॉट the two of you who is getting married, but your family, your upbringing, your traditional values, everything is getting married. And all these can be the situations after your marriage, and how are you going to manage them? ये जो आपने अभी vows बोले, वेडिंग vows जो होते हैं वो संस्कृत में बोले जाते हैं, promises होते हैं जो जिनका मतलब भी नहीं पता बिकॉज संस्कृत में होते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ बहुत सी जगह जो पंडित होता है ना, वो संस्कृत के श्लोक जरूर पढ़ता है, बट देन साइमल्टेनियसली वो उसको हिंदी में या जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें बताते, हिंदी करते, डेफिनेटली ट्रांसलेट सही है करके ये। बताता है कि इसका ये मतलब है। भले ही शॉर्ट जी। में बताता है, बट वो जो सप्तपदी होती है, जो 7 श्लोक बोले जाते हैं, वो जी। सप्तपदी के टाइम पे हर जो पढ़ा लिखा जो पंडित होता है वो हमेशा शादी के टाइम पे उस चीज को ट्रांसलेट करके बताता है।
he will अब जिसको interpret, नहीं explain करता निभानी है। वो नहीं निभाएगा। और अभी मतलब फ्रॉम अगेन मैं बोलूं कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं ये बात करूं, तो लोगों में ना जो बेसिक कल्चर है वो ऐसा हो गया है कि काफी इम्पेशंस आ गया है, काफी जल्दी जजमेंटल हो रहे हैं लोग, या जो मेंटल जिसको कहेंगे हम कि स्ट्रेंथ वो लोगों की कम हो गई है। तो ऐसा जो आपने बताया कि ये रीजंस आपके पास ज्यादा आ रहे हैं या इस ड्यूरेशन में ज्यादा हो रहे हैं या ये, इसके साथ साथ ना इसमें काफी सारे एनालिसिस की जरूरत है, नॉट जस्ट बेसिस द स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा बट ऑल्सो एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड स्टडी की भी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और इसमें अगर इस तरह की शादियां हो रही है तो ये एक शादी कम और एक एडजस्टमेंट ज्यादा हो रही है। मीन्स जस्ट पेरेंट्स को दुखी नहीं करना है। कहीं तो भी ऑलरेडी मेरी प्रीवियस लाइफ से मेरे पेरेंट्स काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं और कहीं तो भी ये रिश्ता देखा है, अगर वो लड़का कम पढ़ा लिखा है और ये लड़की का एजुकेशन या शी इज हाईली क्वालिफाइड, तो यहाँ भी चीजें जुड़ने जैसी नहीं होती है, क्योंकि उनकी परवरिश में अगर इतना फर्क है कि वो लोग नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि कहीं अगर दो पढ़े लिखे इंसान है वो एक दूसरे को समझने में, वो एक दूसरे को जल्दी समझ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में क्वालिफिकेशन, वे ऑफ लिविंग, टेस्ट ऑफ लाइफ, अगर सब चीजें अलग है तो मुश्किल हो जाता है ऐसे चीजों में कंटिन्यू रहना या एक दूसरे का साथ निभाना। तो अगर कोई लड़की न्यूक्लियर फैमिली में पढ़ी बड़ी लिखी है, अगर उसको जॉइंट फैमिली में आप उसकी शादी करवाओगे, तो अगर वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी तो वो एडजस्ट हो भी जाएगी। लेकिन अगर उस फैमिली का माहौल ही पूरी तरह अलग है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये रिश्ते ज्यादा आगे तक बढ़ सकते हैं। ये रिश्ते तो डिपेंड करता है कि अगर आप इतने कम पढ़े लिखे लड़के के साथ, हालांकि अगर उसका बिजनेस होगा वो कमाता अच्छा होगा, लेकिन कमाना, बिजनेस बड़ा होना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ाता है। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है उसकी क्या ख्वाहिशें है, उसका रहन सहन कैसा है, उसको आप कितना समझ लेते हो। अगर वो कहीं परेशान है तो उसको शांति से सुन लो। अगर उसकी परेशानी आप किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करोगे और सॉल्व कर दोगे, तो आप काफी कम पढ़े लिखे हो फिर भी वो इंसान आपके साथ खुश रहेगा। लेकिन अगर आप अपने ही हिसाब से चलोगे तो मैं नहीं समझता हूं ऐसे दो किरदार एक साथ कंटिन्यू साथ निभा सकते हैं। जैसे इंसान साथ में रहना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे वक्त पे प्री काउंसलिंग होना या फिर ये सब चीजों का पहले उनको एक दूसरे से मिल लेना चाहिए या फिर एक दूसरे की फैमिली के बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ पे मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी एक चीज बोलूंगी कि कोर्टशिप पीरियड आपका कितना भी लंबा हो, मतलब पहले के जमाने में भी क्या होता था कि शादी के बीच में और एंगेजमेंट के बीच में एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता था, पर फिर भी घर से बाहर जो बातें आती हैं वो कम ही आ पाती हैं। लेकिन जस्ट शादी के बाद घर के अंदर की क्या बातें हैं, एक्चुअली क्या चीज, किसका क्या नेचर है, वो तभी सामने आता है जब आप उस घर में जाके साथ में रहने लगते हो। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, मतलब मैं ये जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रही हूँ, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ द जेंडर्स। तो ये जो बिहेवियरल इश्यूज हैं ये तभी आपके सामने आते हैं जब आप एक लंबा समय एट अ स्ट्रेच किसी के साथ में स्पेंड करते हैं। मैंने बहुत रिसेंटली एक राइट अप शेयर किया था, अगर आपने पढ़ा हो, इट वाज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फिलोसफर्स बुक, कि एक लड़की को देख के वहां के राजा को प्यार हो जाता है एंड ही अप्रोचेस हर फॉर मैरिज। तो जब उससे बोला जाता है कि आपके लिए राजा का रिश्ता आया है, तो लड़की वो रिश्ता भी ठुकरा देती है बिकॉज वो ऑलरेडी प्यार में है किसी से। तो जब उसको, उसके फैमिली को, सबको पता चलता है कि वो ऑलरेडी किसी से प्यार करती है, तो वो राजा बोलते चलो कोई बात नहीं, दोनों को साथ में रहने दो। दोनों को साथ में वो बिल्कुल पूरे टाइम रख देता है, बांध देता है लिटरली,
इट इज एज गुड एज अ पनिशमेंट कि दोनों साथ में ही रहो। तो दोनों को वो एक ही पोल पे बांध देता है, एक साथ बांध देता है। उसके थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि दे हैव इवन शेड द क्लॉथ्स और वो साथ है। उसके बाद 3-4 दिन के अंदर ही एक दूसरे से नफरत हो जाती है, बिकॉज इतने ज्यादा वो एक दूसरे के साथ है। सो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। मतलब जो आजकल ऐसा नहीं है कि लव मैरिजेस जो है वो नहीं टूटते, लव मैरिजेस भी टूटती है, उसमें भी डिवोर्स होता है। कई आपको ऐसे कपल्स मिलेंगे जो जॉब में साथ में थे, साथ में 4 साल से 6 साल से जॉब कर रहे थे, शादी किया, शादी करके 1 साल के अंदर सेपरेट होने आ गए। मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया, लव मैरिजेस ज्यादा टूटते हैं। यस, वही होता है ना कि आप ज्यादा भी किसी को जान जाते हो वो भी आपके लिए खतरनाक है। कम जानते हो वो तो खतरा है ही, पर किसी को बहुत ज्यादा जान लेना भी खतरनाक हो जाता है। और लव मैरिजेस में क्या है, दोनों की तरफ से प्रेशर रहता है, हमने तो पहले ही कहा था हमारे पसंद की नहीं है, और वो बोले तुमको तो पहले ही मालूम था कि तुम्हारे घर वाले हमें पसंद नहीं करेंगे, तो फिर हमसे शादी क्यों की तुमने। तो वो आपस की डिस्प्यूट के 2 रीजंस और बढ़ जाते हैं। तो ये जो आपने हमको बताया कि ऐसा होता है कि रीजन सोशल मीडिया भी एक है, अडल्ट्री भी एक रीजन है मैरिज से बाहर जाने का, एक दूसरे को चीट करते हैं कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली ये कंसर्निंग है। एंड ये जो टॉपिक है वकील साहब, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। वी वुड वांट टू कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। मीन्स ये तो एक टॉपिक हुआ, और मे बी इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू शेयर योर डिटेल्स ऑल्सो, मैं जो यूट्यूब में शेयर करूंगी। आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। So we will be inviting sir again for another session with us on the same topic to be continued. And maybe वो timing का issue है कि live थोड़ा सा disturb हो रहा है। We'll try and make it at maybe अगर ये 7:30 का टाइम थोड़ा सा ये हो जाता है कि 7:30 पे ही इशू आ रहा है, तो we'll try and make some adjustment with the timings. And thank you for getting connected with us. I can see like 15-20 people तो मुझे दिख रहे हैं, ऊपर शो नहीं हो रहा है। So we will continue with this discussion. Thank you so much Mukesh ji for joining, and we will surely invite him again. If you have any queries pertaining to matrimonial issues, you can definitely write to us. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उनका नंबर शेयर करूंगी, तो किसी को अगर पर्सनल कंसल्टेशन भी चाहिए है, दे कैन गो अहेड। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एवरीबॉडी।